نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ. بہنوں، ہمارا سبق کل سے ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم معجزات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. کہیں نہ کہیں بہنوں ایسا لگتا ہے کہ ایک نانی کی دعا ہے نا، وہاں سے نا اللہ تعالیٰ شروع کیا تھا کہ ایک ماں جب بچہ پیٹ میں تھا تو اس نے وہیں سے دیکھو کیا نیتیں کی تھی نا کہ یا اللہ، میں حمل سے ہوں ہے نا، تو اور میں اس بچے کو کیا کر رہی ہوں، تیرے دین کی خاطر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں ہے نا، وقف کرنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ. تو وہ دیکھو بہنوں، وہ بھی ایک مائیں تھی اس زمانے کی، آج بھی ہوں گی ویسے، پر کہیں نہ کہیں آج ایسی ماؤں کی بہت کمی ہے. آج تو کس چیز کا زمانہ ہے بہنوں، سوشل میڈیا کا زمانہ، ٹک ٹاک کا زمانہ، انسٹاگرام کا زمانہ ہے نا. اب آج کل جو ہے نا بہنوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے. کل بھی مجھے ایک ویڈیو آیا تھا بہنوں، میں نے جب دیکھی تو مجھے بہت سچ مچ اتنا افسوس ہو رہا تھا. جوان مسلمان لڑکے اور لڑکیاں، جوان ایک دم ٹین ایجرز بہنوں، وہ لوگ کس چیز میں تھے پتہ ہے؟ وہ لوگ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں تھے. باپ کے سامنے، مطلب والد کو بھی ان لوگ نے لے لیے ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، کھلے بال رکھے ہوئے ڈانس کر رہے، اور ڈیڈی بھی سپورٹ کر رہے. اور کیا ان کی تعلیم ہوگی، کیا تربیت ہوگی، مطلب وہ لوگ اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں ہے نا. کچھ لوگ ہے جو بنا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں نا. ہماری آج نسلوں میں کیا ہو رہا ہے، یا تو کوئی بندہ بناتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے، یا تو پھر بندے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے لائک کرتے ہیں. کیا سٹائل، کیا فیشن، کتنا مطلب سوچنے جاؤ تو اگر ایسی لڑکی جو ایسی حرکتیں کر رہی ہے، تو بہنوں جب وہ پریگننٹ ہوگی، ہاں جب اس کا بچہ ہوگا، تو سوچو وہ بچے کے اندر کیا ہوگا بہنوں. سوچ کے دیکھو، اگر ماں ایسی حرکتیں کر رہی ہے تو نسلوں کا کیا ہوگا، سوچ کے. ہاں تو بہنوں بہت زیادہ فکر کی بات ہے. میں تو سچ مچ اللہ سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہر عورت کو، یہاں پہ دیکھو نا بہنوں، کل سے میں یہ آیتوں کو دیکھ رہی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا عورتوں کو کتنا 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 امپورٹنس دیتا ہے، کتنی اہمیت دیتا ہے. الحمدللہ ہے نا، کیا درجے، کیا رائٹس. ہاں الحمدللہ ان کے بارے سے ہی ذکر کیا ہے نا. اور یہاں پہ آج اگر ہم دیکھنے جاؤ تو ہم کو یہ سب باتوں کی تعلیم ہی نہیں تھی ہے نا، کہ ایسا پڑھنا چاہیے پریگننسی میں، ایسا کرنا چاہیے. تو بہنوں بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم قرآن سے جوڑے. ہاں ہم ان کو قرآن کی فہم، قرآن کی سمجھ ان کو عطا کرے. آج کی ماؤں کو بہنوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہنوں کتنے شرک اور بدعت کاموں میں پڑ جاتے ہیں. کوئی کالا کلر کا ٹریڈ ہوتا ہے نا، ڈوری بولتے رائٹ، اس کو پہنا دیتے ہیں نظر نہ لگنے سے، کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں ہے نا. کچھ تو کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں بہنوں جو ثابت ہی نہیں ہے. اور نظر اتارنے کے لیے بھی کیا نہیں کرتے بہنوں، مرچیوں سے اتارنا، لیمبوؤں سے اتارنا. دیکھو بہنوں ہم ہمارے دین کو نہیں جانتے، اور اس کے لیے ہم ایسے کامیں کرتے. کیا بہنوں کوئی چیز ہمارا نقصان یا فائدہ کر سکتی ہے؟ ہاں کیا وہ جو رسی جو ہم بچوں کے پیروں میں یا کمر میں باندھتے ہیں، گلے میں باندھتے ہیں، کیا وہ مجھے بچا سکتی ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہی ہے نا بہنوں جو نفع نقصان کا مالک ہے. آج کی مائیں صرف ایک ہی فکر کر رہی ہے بہنوں، ہمارا بچہ کھاتا نہیں، ہمارا بچہ کھاتا نہیں. اور کھانے کے چکر میں بہنوں ان کو ہاتھوں میں موبائل دے دینا، ٹی وی آن کر دینا. مطلب کیا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے پتا نہیں، بس پیٹ بھر جانا چاہیے، بس میرا بچہ موٹا ہو جانا چاہیے ہے نا. کہیں نہ کہیں ہماری فکریں دنیا کی لگی ہوئی ہے، بچہ کھا لے، بچہ کھا لے، بچہ کھا لے، بس اس کے کھانے کی ہی فکر کر رہے. مطلب جسمانی فکر، میں نہیں کہتی ہوں کہ مت کرو، مت کھلاؤ، کرو، پر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ صبح سے لے کے رات تک اس ماں کو صرف اس کے جسم کی فکر رہتی ہے، بچے کی روح کی فکر نہیں رہتی ہے بہنوں. کہ بچے کے اندر قرآن کے الفاظ جا رہے، کچھ تو اللہ کی باتیں جا رہے. ہاں ہمارا بچہ، اس کی روح کی طاقت کا ہم کو کوئی فرق نہیں ہے. ہم کو کس چیز کا رہتا ہے بہنوں؟ ہاں بس بدن، جسم کا رہتا ہے، جسم کو موٹا کرنا ہے، جسم کا دنیا کا خیال رہتا ہے. ہم کو اس کی آخرت کی بھی بہت زیادہ فکر کرے بہنوں.
آ رہا ہے سمجھ میں؟ منع نہیں کر رہی ہوں, بس اتنا بول رہی ہوں کہ بیلنس کرو. اگر دنیا کی فکر کر رہے ہیں, جسمانی فکر کر رہے ہیں, تو بچے کی روحانی فکر بھی کرے. ایک وقت نکال کے ہم بچوں کو ہمارے نبی کے بارے میں, ہمارے صحاباؤں کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کچھ تو کچھ ان کو اس سے بھی جوڑا کرے. اور کھانے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی دکھا رہے. کوشش کرے بہنوں ہم ان کو صحیح چیز بتائے, ہے نا. الحمدللہ جتنا ہو سکے موبائلوں سے دور رکھے. اس کی ریڈیشن ریز بھی اچھے نہیں ہوتے بہن, کبھی کبھار سمجھ میں آتا ہے, پر اتنا ایسا ایڈکشن نہ ہو جائے بچوں کو پھر ہمارے لیے ببال ہو جائے, کیونکہ یہ چل رہا ہے بہنوں, بہت ٹرینڈنگ ہے نا. اب دیکھو بہنوں یہ سب آئے تھے, اب ہم سوچیں گے کہ یار میرے لیے کیا کام کیا. میں کل یہی سوچ رہی تھی کہ یار یہاں پہ حنا بنتے فاخت ہے نا, جو مریم علیہ السلام کی امی تھی, ان کے بارے سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں یس مدر از دا فرسٹ ٹیچر. پہلا بولتے نا پہلا مدرسہ ماں ہے بہن, پہلی ٹیچر ماں ہے. تو ماں کو چاہیے بچے کو بہت تربیت دے. پہلا لفظ اگر وہ بولے تو اللہ بولے بہنوں انشاءاللہ. یعنی اس کو ہم لوگ کیا سکھاتے پتہ ہے, ڈانس سکھاتے, گانا سکھاتے, اسٹائل سکھاتے. ہم لوگ ہی ہمارے بچوں کو برباد کرتے ہیں بہنوں. ان کو تو نہ پیزا معلوم, برگر معلوم, ہم لوگ ہی چکاتے ان کو. پھر جب وہ لوگ ڈیمانڈنگ ہو جاتے تو ہم لوگ روتے کہ ارے ہمارا بچہ تو گھر کا کھانا نہیں کھاتا, صرف باہر کا کھانا کھاتا ہے. کون اس کو سکھایا, کون اس کو بتایا؟ ہم نہیں کیے نا بہنوں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکریں سامنے رکھ کے چلے. یاد رکھنا بہنوں, یا تو میرے بچے میرے جنت کمانے کا ذریعہ بنیں گے, یا تو میرے لیے آگ کا ذریعہ بن جائیں گے. اگر میں نے ان کو صحیح تربیت نہیں دی, صحیح تعلیم نہیں دی, تو اگر سوچو بہنوں میں نے ان کو کچھ اچھا سکھائی نہیں, اور اگر پھر وہ برے ہوتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں, میں تو چلے جاؤں گی یہ سوچ کے کہ میں تو اللہ اللہ کر رہی تھی, مگر ان کا جو غلط کام وہ لوگ کر رہے تھے اس کا وبال بھی میرے پاس ہی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے تربیت نہیں کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جنت اور دوزخ سب یاد رکھنا ہے بہنوں کے فیصلے ہو سکتے ہیں, ہے نا. تو انشاءاللہ دیکھو بہنوں ہم ہمارے لائن سے کوئی تربیت کرے, پیار محبت نرمی سے لے کے چلے. اگر وہ سن لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, آ جاتے ہیں تو الحمدللہ, اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہمارے سے سوال نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ہم نے تربیت کی ہے. اگر پھر بھی وہ نقشے قدم پہ نہیں چلتے, غلط ٹریک پر ہی چلتے ہیں, تو پھر ہم سے پوچھ نہیں ہوگی. الحمدللہ. تو بہنوں یہاں پہ یہ آئے تھے نا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ سچ مچ جب میں کسی کرسچن کے پاس جا کے دعوت دوں گی نا انشاءاللہ, تو میں اس کو یہی بولوں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام تم لوگ اکھا ٹائم کرتے رہتے ہو, جیجس جیجس, تم لوگ وہ جیجس کی نانی کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں, تو میں تو انشاءاللہ ان کو نانی کے پاس سے بتاؤں گی. دیکھو بہنوں جب ہم لوگ ان کو بتائیں گے نا کہ دیکھو تمہاری نانی ایسی تھی, تمہاری امی ایسی تھی, ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ایسا کیے, تو وہ لوگ بھی انٹرسٹ لیں گے, رائٹ. ارے واہ, ان کو ہمارے مطلب ان لوگ بہت چاہتے ہیں نا جیجس جیجس کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم ان کو ان کے نانی کے واقعے سے بتائیں گے تو کتنا ان کو بھی انٹرسٹ آئے گا, ہو سکتا ہے ہماری دعوت بھی قبول کرے, ہے نا. تو بہنوں یہ سب چیزوں میں حکمت چھپی ہوئی ہے, تو بہت غور و فکر سے سنیں گے, سمجھیں گے, یاد رکھیں گے, تاکہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہے, یا اللہ بس اللہ تو ہم سے یہ دعوت کا کام لے, مسلمانوں میں بھی اور کافروں میں بھی, ہے نا. انشاءاللہ اللہ تو ہم سے کام لے, تو ہم سے بلوا, تو یا اللہ ہم کو چن لے, جیسے تو نے مریم علیہ السلام کو چن لیا تھا, ہے نا. یا اللہ تو ہم کو بھی اس کام کے لیے چن لے. عورتوں میں مریم علیہ السلام, فیملی میں دیکھو آل عمران, کل سب ہم نے پڑھے تھے, رائٹ. تو اللہ سے ہم کیا کریں گے, بہت دعائیں کریں گے, ہاں, اور بولیں گے کہ کیا باپ رے, آپ کی عیسیٰ السلام کی نانی تو سپر وومن تھی ماشاءاللہ, کیا دعا مانگی تھی انہوں نے, کتنی اچھی تعلیم, ہے نا, کتنا اچھا انہوں نے کیا تھا. تو ایسا بول کے ہم کیا کر سکتے ہیں, توحید کی دعوت دے سکتے ہیں. الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں بہنوں آج کی آیتوں کی طرف. آیت نمبر 40 تک کل ہو چکا تھا, آج ہم آیت 41 سے شروع کریں گے. اوکے انشاءاللہ. تو میں یہاں پر جو ہے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. اوکے الحمدللہ. ہاں,
इन अल्लाह, बेशक अल्लाह। अब यहाँ पे देखो बहनों, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ही चल रहा है, पूरा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में चल रहा था, उनको कैसे मौजिज़ात दिए थे, है ना। अब यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्या कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह जो है वो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, बस बंदगी करो उसी की, यानी अल्लाह तबारक ताला की, और यही जो है वो क्या है, सीधा रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आयत है ना बहनों, सचमुच हम लोग को है ना क्रिश्चियंस को बताना चाहिए कि देखो ना, ये आयत पे गौर और फिक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह कि आयत नंबर 51, राइट, हाँ। तो यहाँ पे गौर और फिक्र करो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुद ही ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बेशक मैं अल्लाह जो है ना वो मेरा रब है। तो क्रिश्चियंस को हम लोग बोल सकते हैं कि तुम लोग जो कहते हैं ना, नाउजुबिल्लाह, जीसस इज गॉड, जीसस इज सन ऑफ गॉड एंड वन ऑफ द ट्रिनिटी, जो तुम लोग ये बातें बोल रहे हो, यहाँ पे देखो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद ही बोल रहे हैं कि अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारे, क्रिश्चियंस है ना, तुम लोग का भी रब कौन है, अल्लाह ताला है। और क्या करो, उसी की ही बंदगी करो, उसी की ही क्या करो, इबादत करो। और यही है क्या, सीधा रास्ता, यानी कि यही जो है वो क्या है, सीधा रास्ता है। तो अगर हम ये बताएंगे बहनों, तो हो सकता है कि जिस झूठ पर वो लोग जी रहे हैं, हाँ, और जिस झूठ को ये लोग फैला रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग रुक जाए और हिदायत के जो है वो रास्ते खुल जाए, है ना। तो बहनों ये सब आयतें हैं ना, हम दुआएं करेंगे अल्लाह से कि या अल्लाह प्लीज हमसे ये काम ले ले। देखो बहनों, होएगा कि नहीं होगा वल्लाहु आलम, हाँ, पर हमारी नीयत पर, हाँ, नीयत पर सवाब मिल जाता है बहनों। हमारा तो मजहब इतना प्यारा है कि बस नीयत पर मिल जाता है। हम नियतें करेंगे कि या अल्लाह प्लीज अल्लाह कि हम भी, हाँ, कभी ऐसा हो कि हम क्रिश्चियंस के सामने ऐसी दावत दे कि देखो खुद ईसा अलैहिस्सलाम ये बात बोल रहे हैं, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो, है ना, नाउजुबिल्लाह, कि वो गॉड है, सन ऑफ गॉड है, वन ऑफ द ट्रिनिटी है ना। तो ये सब जो क्रिश्चियंस बता रहे हैं बहनों, वो सब क्या है, गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट आयत पर आ जाते हैं, आयत नंबर 52। अब एक एक आयत बहुत इंपॉर्टेंट है बहनों, यहाँ से तो गौर और फिक्र से सुनना, इंशाल्लाह। और जब महसूस किए ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कुफ्र को, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे बहनों, ओके, जरा सा बैकग्राउंड याद रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ आए थे, कल आयत आई थी ना, बनी इसराइल यानी यहूदी की तरफ आए थे। उनके पास ऑलरेडी तौरात थी बहनों, ऐसा नहीं कि तौरात नहीं थी, मगर तौरात में जो रद्दो बदल उन्होंने कर लिया था, जो हलाल था उसको भी उन्होंने हराम कर दिया था। तो कल हमने आयत पढ़ी थी ना कि ईसा अलैहिस्सलाम आए थे उसको सही करने के लिए, है ना। इतनी उन्होंने दावत दी बहनों, इतनी उन्होंने दावत दी, मगर कहीं ना कहीं लगता है ना कि इनके अंदर जिद थी, हट डरमी थी, ये वो ओहदे को खोना नहीं चाहते थे, है ना। कैसा इनको था कि सामने वक्त के रसूल, वक्त के पैगंबर इनके सामने खड़े होके इंजील लेकर आए हैं, इतने सारे मौजिजात, क्लियर मौजिजात बहनों। बच्चा बात करना, इट इज समथिंग जो हो ही नहीं सकता, है ना। इतनी बड़ी निशानी देखे, इतना कुछ मौजिजा उनके हाथों से देखे, फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे, झुटला रहे थे, है ना, मानने को ही तैयार नहीं थे। अब यहाँ पे जब ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत दावत दी, बहुत दावत दी, बहुत दावत दी, तो भी जब ये लोग कबूल नहीं कर रहे थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या महसूस किया बहनों, उनसे कुफ्र को महसूस किया, उनसे इनकार का महसूस किया। अब बहनों ये जो वर्ड है ना, महसूस करना, इसको मैं हाईलाइट करूंगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहनों। यहाँ पे देखो बहनों, ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया, क्या मैं और तुम भी महसूस करते हैं, क्या मैं और तुम भी कॉन्शियस है बहनों। हमको ये देखना है। रूम में तो हम चले जाते हैं, सब बैठे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रूम में आते हैं, ऐसे ही आते हैं, बैठते चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो देखते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ लोग देखने के बाद महसूस करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। मोमिन जो है ना वो बहुत अलर्ट रहता है,
बहुत कॉन्शियस रहता है बहनों। मोमिन है ना, ऐसा नहीं होता है कि बेफिक्र वाली जिंदगी, गफलत वाला, ऐसा नहीं होता बहनों। वो बहुत चौकाना रहता है, समझ में आता है, बहुत अलर्ट रहता है, वो मल्टीपल कामें करता है बहनों, समझ में आ रहा है। और महसूस करने से मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊंगी तो समझ में आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि देखो बहनों, बहुत ही खूबसूरत ये आयत है, और अकल है ना हैरत हो जाती है बहनों, ओके, हैरान हो जाएगी अकल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो नबी और रसूल थे, राइट। अब उनके सामने हजरत उमर ताला अनहु, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए। कौन? हजरत उमर ताला अनहु अभी तक मुसलमान नहीं हुए हैं उनके जमाने में। मगर नबी पाक वसल्लम जब भी उनको देखते थे ना, वो महसूस करते थे। क्या महसूस करते थे? उन्होंने हजरत उमर तला अनहु के देखा था, उनको जाहिलियत के वक्त उनको देखा था, राइट। उनके अंदर जो जो अखलाक थे, जो उनके काम आदत थे, वो सब उन्होंने देखे। तो उन्होंने ये महसूस किया कि अगर ये इस्लाम में आ जाएंगे ना, तो इस्लाम का बहुत ही फायदा होगा। तो ही तो हमारे नबी पाक वसल्लम ने क्या किए थे? उनके हक में दुआ किए थे, है ना, कि या अल्लाह, है ना, हजरत उमर तआला अन्हु के हक में हिदायत कबूल कर। जो मतलब दो जन के लिए उन्होंने दुआ किए थे कि अगर वो इस्लाम में आ जाते तो बहुत फायदा होगा। अल्लाह ने किसके हक में कबूल किए? हजरत उमर तआला अन्हु के हक में कबूल किए। तो ये सब कैसा हुआ? ये हिदायत का जो फैसला हुआ, ये कैसे हुआ बहनों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया। समझ में आ रहा है? तो ये महसूस करना बहुत जरूरी है। आ रहा है समझ में? ये सिफत हम सबके अंदर होनी चाहिए बहनों। आ रहा है समझ में? हम सब जो है ना वो महसूस करे बहनों। और अगर लगता है कि नहीं, इसके अंदर वो नहीं है, तो हम जो है ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें। क्योंकि ईसा अलैहि सलाम ने भी एनर्जी वेस्ट नहीं किए, अपना वक्त वेस्ट नहीं किए। जब उनको लगा कि इतने बार बोलने के बावजूद भी सामने वाला नहीं मान रहा है, तो उन्होंने टाइम वेस्ट फिर नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो ये भी हम याद रखें। आयत पर आऊंगी मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अलर्ट रहना, कॉन्शियस रहना, सामने वाले के अंदर क्या टैलेंट है जो मेरे दीन में काम आएगा, वो भी जरूरी है बहनों। आज हम औरतें ना सचमुच बहुत ही मतलब ये जो महसूस करना या कॉन्शियस रहना हम लोग नहीं रहते बहनों। याद रखना बहनों, हम सिर्फ एक औरत नहीं है, एक माँ है, एक बेटी है, हम एक बहन है, हम एक बीवी है ना। तो याद रखना हमारे शौहर भी अलर्ट रहना चाहिए बहनों, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हाँ, हमारे बच्चे भी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, सब पे है ना बहनों एक निगाह रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह ना करे ओके, कभी ऐसा हुआ कि हम तो बेफिक्र जी रहे, अब हमारे बच्चे शौहर सब हमारा फायदा उठाएंगे कि इसको तो पड़ी ही नहीं है ना। तो भले मैं किसी से अफेयर रखूं, हाँ, मैं कुछ भी करूं, उसको तो पड़ी ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो फिर लोग जो है ना हमें धोखा भी देंगे, लोग हमारा फायदा भी उठाएंगे बहन। समझ में आ रहा है? तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि कभी भी कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, उड़ते परों को हम उड़ते परिंदों को हम क्या करते हैं? गिन लेते हैं ना, कि वैसे परख लेते हैं। वैसे रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर बाद में रोते हैं कि अरे मुझे पता ही नहीं था, शौक हो गई मैं, अचानक से लेटर लिख के बच्ची भाग गई। क्यों? इतने टाइम से सब चल रहा था घर में, क्यों नहीं थे अलर्ट, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए बहनों। औरत मतलब उसको क्या रहना है? बहुत ही अलर्ट, बहुत ही कॉन्शियस रहना है। ओके, तो ये भी हम याद रखें। उसी तरह बहनों मुझे लगता है कि अरे मेरे ये कुरान क्लास में कुछ बच्ची है जो बहुत अच्छी है, हाँ, दीन के लाइन से, बोलने के लाइन से एक महसूस हो जाता है ना, तो उनको उनके ऊपर मेहनत करें, उनको फिर ऐसी रास्ते पे लाए, उनको तालीम दे, ताकि फिर वो बहन भी अल्लाह उसको चुन ले और फिर वो भी ये दीन का काम करे। समझ में आ रहा है? तो हम जो है ना महसूस करें बहनों। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसी तरह बहनों कितने लोग हैं बहनों जो स्क्रैप खरीदते हैं। स्क्रैप यानी क्या? जो ऐसी चीजें होती जो हम लोग है ना डस्टबिन में डाल देते हैं बहन। तो ऐसी चीजों को वो लोग उठा के क्या करते बहनों? उन लोग देखते हैं कि भाई इसमें क्या फायदा है क्या नहीं है। हालांकि हम लोग तो फेंक देते हैं, उठा के डाल देते हैं बहनों। मगर वो लोग है ना वो चीज को छोड़ते ही नहीं है, उसमें भी वो लोग ढूंढते हैं कुछ फायदे की चीज। उसी तरह हमको भी ढूंढना है। एक स्क्रैप वाले से किसी ने पूछा कि भाई ये तुम क्या करते रहते हो?
ये तो फेंकने में ही जाता है ना। तो उसने कहा नहीं, इसमें बहुत, जैसे कि कंप्यूटर्स, बोले कि हम लोग सब टूटले फुटले कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो सब हम लोग सबके पास से ले लेते। बोले तुम लोग क्या करते हो? तो बोले कि उसमें बहुत कुछ रहता है। बोले उसमें स्टील रहता है, उसमें सिल्वर गोल्डन, मतलब जो भी थोड़ा बहुत रहता है ना, हम लोग पूरा उसको है ना बराबर से उसको अलग अलग कर देते हैं, उसको पिघलाते हैं, हमको फायदा पहुंचता है उससे। लगता तो कूड़ा कूड़ा ही है, डस्टबिन डालने वाली चीज ही है, रबिश ही है, मगर वो वेस्टेज को भी वो लोग क्या करते हैं, उससे भी फायदा उठाते हैं। समझ में आ रहा है? पुराने चीजों को भी वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं बहनों। जैसे कीचड़ में से गुलाब को ढूंढना। समझ में आ रहा है? और यही है जो अल्लाह ताला हमको सिखा रहे हैं कि ये तुमको जो है ना, हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक ताला अन्हु की दुआ थी कि चीजों की हकीकत, या अल्लाह मुझे तू दिखा दे। हजरत अबू बकर, सॉरी सॉरी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ताला अन्हु जो है ना, वो हमेशा दुआ करते थे, या अल्लाह, कि या अल्लाह मुझे क्या कर, चीजों की हकीकत हमेशा दिखा दे। समझ में आया? तो हमेशा हम मांगे बहनों, और ऐसे लोग जो हमको महसूस होता है कि अरे ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं, हाँ इनके दीन में आने से और हमको फायदा पहुंचेगा, तो ऐसे लोगों पर अपने मेहनत करे, एनर्जी लगाए, वक्त लगाए, हाँ अल्लाह से दुआएं करे। बिकॉज अगर ऐसे लोग अगर आ जाते हैं तो बुनियाद जब स्ट्रांग होती है, फाउंडेशन जब स्ट्रांग होता है, तो जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। आ रहा है समझ में? इंशाल्लाह। तो हम भी क्या करें बहनों, बहुत बोलते ना, सक्सेसफुल होने के लिए बहनों, ये कॉन्शियस रहना, महसूस करना बहुत जरूरी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे देखो बहनों, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी क्या किए, महसूस किए। ओके, तो घरों में अलर्ट रहेंगे बहनों, ताकि लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे चीटिंग ना करे, हमसे फ्रॉड ना करे। हम लोग सब पे भरोसा करके नहीं रहना चाहिए, वरना कोई भी बहनों, दुकान वाला भी हम पे चीटिंग करेगा, फ्रॉड करेगा। बहुत अलर्ट रह के जिंदगी जीना है। जितने भी क्राइम्स होते हैं ना बहनों, वो क्राइम पेट्रोल आता है, वो लोग क्या बोलते लास्ट में, सावधान रहे, अलर्ट रहे, है ना, खुद कॉन्शियस रहे। तुम अलर्ट नहीं थे तो ये तुम्हारे साथ होगा, है ना, तुम अलर्ट होते तो ये पूरा क्राइम ही नहीं होता है ना। तो हमको ही बोलते हैं वो लोग कि आप अलर्ट रहना था, है ना। तो हम अलर्ट रहे बहनों, हर लाइन में हमेशा अलर्ट रहे। मोमिन है ना, सुस्ती करते हुए, हाँ यहाँ वहां ध्यान रखते हुए ना रहे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया उनसे, यानी वो यहूदियों लोग से और वहां के उस वक्त के लोगों से इनकार का महसूस किया, कुफ्र का महसूस किया, तो उन्होंने पूछा, है ना, क्या पूछा, अंसार, उन्होंने जो है पूछा कि कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह की तरफ, अल्लाह के खातिर कौन मेरी मदद करेगा। जब उनको लगा कि भाई अब बहुत हो गया, हाँ मालूम तो पड़े ना कि कौन जो है वो अल्लाह के दीन की मदद करेगा और कौन नहीं करेगा, तो उन्होंने पूछ लिया ये सवाल। तो क्या क्या हुआ, जो हवारियून थे उन्होंने जवाब दिया कि हम बनेंगे क्या, अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की मदद करने वाले बनेंगे। अब यहाँ पे देखो हवारियून का मतलब क्या है बहनों। हवारियून जो है ना, हूर या हूर से बना, मतलब बहुत सारे वर्ड्स है बहनों इसके अंदर छुपे हुए। एक तो साफ दिल वाले भी आते हैं, सुफेदी सुफेदी भी आता है, सुफेद वाले थे, मतलब ये लोग जो है ना वो कपड़े धोने वाले होते हैं ना, धोबी जिसको कहते हैं, वो लोग कपड़े को क्या करते हैं, साफ करते हैं, साफ सुथरे करते हैं, सुफेद करते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा जो है ये लोग इखलास वाले होते हैं, है ना, अपने काम में बहुत इखलास वाले होते हैं। तो हवारी इन जो है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब इनसे पूछा गया कि कौन मेरी मदद करेगा, यहाँ पे बहनों एक एक लफ्ज पे गौर करना। हाँ, जब इनसे पूछा गया कि कौन मेरी मदद करेगा, वहां पे नबी, वहां पे एक रसूल, इतने बड़े हैं माशाल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम, उनका दर्जा कितना बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो खड़े होके जब वहां पे सवाल कर रहे हैं कि कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के दीन की खातिर, हाँ, तो वो लोग को क्या जवाब देना चाहिए था कि हम आपकी मदद करेंगे अल्लाह के दीन की खातिर, है ना, अल्लाह के रास्ते में हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि बहनों याद रखना, सहाबा की जब पूछते थे तो सहाबा जो थे वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना चाहते थे, इतना चाहते थे कि फौरन
وہ لوگ نبی مطلب اپنی جان قربان کر دیتے تھے نبی کے لیے, ہے نا, اللہ کے راستے. بیکاز دیکھو بہنوں, نبی کی فرما برداری کرنا, ان کی اوبیڈینس کرنا, گویا کہ اللہ کی اوبیڈینس کرنا, ہے نا, دونوں کا آتا ہے نا بہنوں ساتھ میں. مگر یہ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی مدد کریں گے, انصار اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ غلط نہیں ہے بہنوں, مگر یہاں پہ کہیں نہ کہیں اس جملے سے مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ لوگ نے اپنے نبی جو سامنے کھڑے ہیں, ایک ہمت ہوتی ہے نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے راستے میں, وہ ایک ہمت ہی الگ ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پر یہاں پہ کہیں نہ کہیں ان لوگ کا جو جواب تھا, اس سے مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا بہنوں, جو حواریون تھے اس وقت تو ان کے ساتھ تھے, ہے نا, وہ بول تو رہے تھے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, پر جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تو یہ لوگ سب کیا تھے بہنوں, کوئی بھی بہنوں, ایک انسان بھی جو تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے دے کے گئے تھے اس تعلیم پر آج دیکھو بہنوں کوئی ہے ہی نہیں. سب لوگ کیا ہو گئے, کہیں نہ کہیں بھٹک گئے. سب لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کیا ہو گئے بہنوں, غلط علم کو لے کے غلط ٹریک پر چلے گئے. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ گاڈ ماننے لگے, کوئی سن آف دا گاڈ ماننے لگے, کوئی ٹرینٹی ماننے لگے, پتا نہیں واللہ عالم. کوئی ایک تھا بھی بہنوں اس ٹریک پر, پھر بعد میں وہ بھی کیا ہو گئے, انجیل کی کتابوں میں رد و بدل کر کے اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا, بدل دیا. یعنی کچھ ہے جو کہتے ہیں کہ ہاں ہی از دا پروفٹ, مگر جو ٹیچنگز ہے ان میں اس پر کوئی قائم نہیں ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ ان لوگ نے کیا کیا, کہیں نہ کہیں ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی مدد, بیکاز ہی آسکس دا کوسچن کہ کون میری مدد کرے گا, تو جواب بھی وہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ, اللہ کے دین کی خاطر, ہے نا. تو یہ مفسرین بتاتے ہیں بہنوں, وہ لوگ تو کیا کرتے ہیں, ہر ایک ورڈ پر بہنوں غور و فکر کرتے ہیں, تو ہم بھی کیا کریں گے, غور و فکر کریں گے. اور وہ لوگوں نے کیا کہا, آمنا باللہ, ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اور گواہ رہنا کہ بے شک ہم کیا ہے, مسلم ہے. دیکھو بہنوں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کرسچن تھے, ہم نصارہ ہے. وہ لوگ اس ٹائم پہ کیا تھے, سبمسو تھے. وہ لوگ وہ کیا تھے, مسلم تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا, اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا, ہے نا. یہ سب نبی یہی کہتے تھے بہنوں, اور حواریون نے بھی یہی کہا کہ ہم سب کیا ہے, مسلمان ہیں. اور پھر وہ لوگوں نے کیا کہا, ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ آیت میں بہنوں. اوکے, الحمدللہ. پھر انہوں نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی, ربنا آمنا. کیا کہا کہ ربنا, ہمارے رب, ہم نے ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا. یعنی آپ نے جو کچھ بھی نازل کیا, ایک سیکنڈ میں اس کو مٹا دیتی ہوں, آپ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہم اس پر کیا کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. اور یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پیروی کرتے ہیں رسول کی, بس ہمیں لکھ دے کس کے ساتھ, گواہ دینے والوں کے ساتھ, وٹنسوں کے ساتھ, جو گواہی دینے والے ہیں ان کے ساتھ ہم کو لکھ دے. اوکے, الحمدللہ. اب کیا ہو رہا ہے بہنوں, اچھا یہاں پہ بہنوں میں ایک بات بتاتے چلوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا بہنوں, انہوں نے بھی دیکھو جب بہنوں, جب قوم سے جو ہے کفر بہت بڑھ جاتا ہے, اوکے, جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں, پرمیشن دے دیتے ہیں, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے. ہاں, اتنا ظلم ہو رہا تھا, ظلم و ستم ہو رہا تھا, اتنا کچھ ہو رہا تھا مکے میں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آیا کہ نبی نے حکم دیا کہ تم کیا کرو, ہجرت کرو, ہے نا. ہجرت یعنی کیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ چلے جانا اللہ کے دین کی خاطر, ہے نا, الحمدللہ. یعنی اپنے ایمان کے لیے, اپنے اسلام کو بچانے کے لیے, اور دین کی نیت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم چلے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہجرت, امیگریشن, ہے نا, مائگریٹ کرنا, الحمدللہ. تو اگر ہم دیکھتے نا بہنوں, تو ہر نبی نے کیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیے, ہاں, ابراہیم علیہ السلام نے کیے, ہے نا, الحمدللہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہنوں,
عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے محسوس کیا نا تو انہوں نے بھی ہجرت کیے اللہ کے حکم سے، مگر ان کی ہجرت جو تھی وہ زمین کی طرف نہیں تھی. ہاں، ہمارے جو دوسرے پیغمبر تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ امیگریٹ ہوتے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے بہنوں؟ زمین سے زمین کی طرف نہیں بلکہ زمین سے آسمان کی طرف وہ کیا کر لیے ہے؟ امیگریٹ کر لیے ہے، ہجرت کر لیے ہے. تو ماشاءاللہ ان کا دیکھو نا بہنوں، کتنے سارے معجزے میں یہ بھی آتا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ یہ بھی ایک میریکل ہے، رائٹ؟ الحمدللہ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے دوسرے صورتوں میں بھی اور یہاں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ. پر آیت پر آ جاتے بہنوں کہ جیسے کہ ہمارے نبی کے جو اصحاب ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جنہوں نے ان کو دیکھ کر ایمان لایا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے اور ان کو دیکھ کر ایمان لائے وہ کون ہے؟ حواریون، ہے نا؟ الحمدللہ. اور بہنوں یہاں پر دیکھو ماشاءاللہ بہنوں ان کی جو کتابیں ہیں الحمدللہ، جیسے کہ انجیل کو ہی دیکھ لو بہنوں، ہاں جو بائبل بول سکتے ہیں آج کے زمانے میں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ماشاءاللہ، اور صحاباؤں کا بھی ذکر ہے بہنوں الحمدللہ. تورات میں بھی ہے بولتے ہیں، انجیل میں بھی ہے کہ نہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل میں ہے بلکہ اصحاب جو ہمارے نبی کے صحابہ تھے ان کے بارے میں بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آتا ہے مگر ان کے بارے میں کچھ واقعات ہے جو ان کے ساتھ ہمارے نبی کے ساتھ جو وہاں پہ وہ تھے ایسے کچھ واقعات بھی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے نا وہ انجیل میں آتا ہے. اوکے الحمدللہ. تو میں جب کل یہ سنی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ان کی کتابوں میں ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے. اوکے الحمدللہ الحمدللہ. اب دیکھو نا بہنوں یہاں پہ ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لائے، ہے نا؟ یا اللہ ہم تجھ پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. تو جو کچھ بھی تو ہم پر نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم ہمارے رسول کی پیروی بھی کریں گے، بس ہم کو لکھ دے، گواہ دینے والوں میں سے لکھ دے. تو یہ ان کی دعا تھی الحمدللہ. پھر آگے بڑھتے ہیں بہنوں، کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے بہنوں، میں اچھا بعد میں آتی ہوں اس چیز میں، پہلے میں ہم لوگ مکر کے بارے میں سنتے ہیں. اور مکرہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ مکر کیا، فریب کیا، فراڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہترین بہترین تدبیر کرنے والے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پہ کیا ہوا بہنوں کہ میں ایک واقعہ سمجھاؤں گی، ان کی بیک ہسٹری تھوڑا بتاؤں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ بہنوں کیا ہو گیا نا کہ یہودی جو تھے نا وہ کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں بہت کچھ غلط سلط پھیلا رہے تھے، نعوذ باللہ، کہ یہ جو ہے ان کی پیدائش کے بارے میں بہت برا بھلا ان کو بھی بولتے تھے، ان کی امی کے بارے میں بھی غلط غلط تہمت لگا رہے تھے، بہت برا کر رہے تھے. یعنی وقت کے پیغمبر تمہارے سامنے ہے، رسول نبی سامنے ہے، تم کو چاہیے تھا کہ ان کے ایمان لانا، ان کی جو بھی باتیں لائے ہیں اس پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو سپورٹ کرنا. بلکہ یہودی جو تھے نا وہ بہت زیادہ برائی کے طرف آ گئے تھے. اوکے، اب کیا ہوا نا کہیں وہ لوگ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ، پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کو، بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیے تھے بنا رائٹس کے، بنا حق کے. تو یہاں پر بھی وہ لوگوں نے کیا کیا بہنوں؟ ان لوگ نے جو ہے مکر کیا. اوکے، ان لوگوں نے پلاننگ کیا کہ ہم کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. اوکے، تو یہ پلاننگ چل رہی تھی. اس کے لیے ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان سے برائی کو محسوس کر لیا الحمدللہ. اب یہ یہودی لوگوں نے کیا کیا؟ یہ لوگوں نے سوچا کہ کیسے ماریں گے ان کو، کوئی تو ریزن چاہیے نا. اب سوچو بہنوں، وہاں پہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے تو مار نہیں سکتے، سب کو پتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے کیونکہ وہ معجزے دکھا رہے تھے. ہاں، مگر یہ لوگ کو کیسے ماریں گے نا؟ تو یہ لوگوں نے کیا کیا پتا ہے؟
ये लोगों ने गलत प्लानिंग्स किए बहनों। ओके, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग किए बहनों? ये लोगों ने जो है वो क्या किए, इल्जाम लगाए। क्या इल्जाम लगाए? एक बार जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बैठ के ये लोग ने इतने सवाल करे, गलत सलत सवाल इतने करे ताकि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम कुछ तो ऐसा जवाब दे और उस बात को वो लोग क्या करे, पकड़ ले और फैला दे। होता है ना बहनों कि हमारे सोशल मीडिया में भी होता है, एक पूरा 1.5 घंटे का बयान होता है, हाँ, किसी मौलाना का। वो माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, कहीं पर भी क्या करते हैं वो लोग उस वीडियो में एडिट करके कुछ भी एक चीज को वो लोग लेके क्या करते हैं, वो इंसान को बदनाम करते हैं कि देखो इन्होंने क्या बोल दिए दीन के खिलाफ। हालांकि आगे पीछे की स्टोरी नहीं बताते कुछ भी। आज जितने बड़े बड़े मौलाना लोग, जाकिर नायक है और ऐसे कितने सारे हैं बहनों, उनके वीडियोस को एडिट करके आज भी ऐसे दुश्मन है इस्लाम के जो क्या करते हैं, गलत मैसेज फैलाते हैं, है ना। तो वहां भी लोगों ने ऐसे ही काम किया बहनों, ईसा अलैहि इस्लाम से इतने सवाल किए ताकि क्या हो जाए, मूसा अलैहिस्सलाम की कोई भी ऐसी बात को वो लोग फैला दे कि देखो इन्होंने क्या जवाब दे दिया। ओके, और ये बता दिया कि देखो नाउजुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम क्या हो गए, मुर्तद हो गए, यानी कि अपने दीन से पलट गए, दीन को उन्होंने छोड़ दिया। अब वो जमाने में बहनों रोमन्स का गलबा था। ओके, गवर्नमेंट किसकी थी, रोमन्स की थी। अब कहीं ना कहीं यहूदियों को क्या करना था, वहां पे जो रोमन्स थे बहनों, उनकी शरीयत थी, उनके लॉज थे कि अगर कोई भी दीन से मुर्तद हो जाता तो उसको क्या करते, कत्ल कर देते। ओके, तो ये लोगों को ये बात मालूम थी, तो ये लोगों ने क्या किया, उसका फायदा उठाया और फौरन एक बात को उन्होंने फैलाने लगे कि देखो नाउजुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा बोल दिए, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्तद हो गए, दीन से पलट गए। और जाके उस गवर्नर के पास गए और सब लोगों ने इतना कुछ झूठ सच क्या क्या तो मिला के इतना कुछ कहा, और वहां से क्या हो गया, जो है वो वारंट निकल गया कि हाँ उनको कत्ल कर दो अगर उन्होंने क्या हुए, दीन से मुर्तद हो गए। क्योंकि बहनों कहीं ना कहीं रोमन्स को पता ही नहीं था कि वो कौन है, क्या है, कैसे दिखते हैं, कुछ नहीं पता। वो तो गवर्नमेंट एक जगह बैठी है। ये लोगों ने बहनों इतनी ज्यादा क्या की, प्लॉटिंग की। ओके, इतना ज्यादा ये लोग ने मक्कर किया और जाके वो गवर्नर के भी कान भरे। ओके, और गवर्नर वेरीफाई करती थी, तहकीक करती थी, पर कहीं ना कहीं सब एक हो गए थे बहन। समझ में आ रहा है, झूठे सबूत, झूठे लोग, झूठे विटनेसेस सब साबित कर दिए, और कहीं ना कहीं क्या हो गया कि ईसा इस्लाम के खिलाफ हो गया। अब ईसा इस्लाम वो तो अपने अपने इबादत गाह में बैठे, उनको क्या पता कि ये सब हो रहा है, हाँ। पर अल्लाह ताला को सब पता है ना बहनों। अल्लाह तबारक ताला तो हिफाजत करते हैं ना। बंदा अल्लाह का हो जाए और वो कहीं पर भी हो बहनों, अल्लाह ताला उसकी क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। उस ईसा इस्लाम को कुछ नहीं पता, यहाँ इतनी बड़ी प्लॉटिंग हो रही है बहनों, इतना बड़ा फरेब चीटिंग सब हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता। पर अल्लाह क्या कर रहा है बहनों, हिफाजत कर रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बहनों, हम भी बहनों अगर हम हक के रास्ते पे हैं, हम सही चल रहे हैं, हमारे साथ भी होता है कि मेरा कोई भी एक बात लेके इंसान उसको गलत करके बता सकता है कि अरे मुबीन तो हट गई दीन से, मुबीन देखो क्या बोल रही है ना। ऐसा कुछ भी हो सकता है बहनों। तो याद रखना हमारा मुहाफिज कौन है, अल्लाह ताला। समझ में आ रहा है कि ऐसा होता है ना बहनों कि हमारे हम लोग अब जो है किसी की सर्जरी होती है। ओके, और सर्जरी से जब इंसान बाहर आता है उसको कुछ भी महसूस नहीं होता कि भाई उसके साथ क्या हुआ है। हाँ, टाके दिख रहे हैं, तब कोई बोलता है कि भाई तेरे अंदर से हमने ये सही किए वो सही किए, हाँ। टाके सिर्फ दिख रहे हैं उसको, पर अंदर की स्टोरी उसको कुछ नहीं पता, राइट। जब अल्लाह पर तवक्कल होता है, तब इंसान तकवे वाला होता है बहनों। तो हमको सिर्फ अल्लाह पे जब इतना भरोसा होता है ना कि पता है बहनों कि ये टाके तो दिख रहे, पर अंदर क्या क्या हुआ वी डोंट नो, है ना। तो अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो सब संभाल लेता है बहनों, सब कर लेता है। हमको क्या करना चाहिए, सही ट्रैक पे होना चाहिए, सही रहना चाहिए, है ना। कुरान और दीन पर सही चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है ना हमारी भी क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर भी देखो बहनों, वो आता है ना कि
क्या तो है कि लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। तो यहाँ पर भी बहनों कितने लोग उनके खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं, आज भी बहुत कुछ करते हैं, पर अल्लाह ताला वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। पूरी दुनिया मिलके भी, हाँ, यहाँ पे पूरे रोमन्स, पूरे यहूदी मिलके भी नुकसान पहुंचाना चाहे, एक अल्लाह हमारे साथ हो तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह ही हमारा साथ छोड़ दे बहनों, तो एक हवा का झोंका भी काफी है ना, हमारे लिए मरने के लिए। तो याद रखना बहनों, हमेशा हमेशा हम अल्लाह को कभी ना छोड़े, अल्लाह की रस्सी इस कुरान को मजबूती से पकड़ ले, है ना, इस पर चले, इस पर अमल करे, इसको फैलाए, अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह की दीन की खिदमत करे, हाँ, इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे देखो बहनों, ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, एक गार्डन में एक घर था, ओके, और वहां पे बैठ के वो इबादत कर रहे थे। उनके साथ जो है उनके 12 हवारीउन थे, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साथी, हाँ माशाल्लाह। और उसमें से एक जो थे, अब ये देखो बहनों, ये सब मुफस्सरीन बताते हैं, ओके, वो 12 हवारीउन में से एक जो थे ना, वो क्या हो गए थे, उनको यहूदियों लोग ने बोलते हैं ना कि करप्ट कर दिए थे, अच्छा, उनकी तरफ कर लिए थे। और कहा कि देखो, अगर क्योंकि कोई ने भी जो थे वो जो रोमन्स, अभी देखो बहनों, वारंट निकल गया, हाँ, वारंट निकल गया कि ईसा इस्लाम को कत्ल कर दो। अब है ना, रोमन्स और रोमन्स के जो सोल्जर्स थे, जो उसके फौजी थे, उन्होंने कभी भी जो है ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, समझ में आ रहा है। तो जब वारंट निकल गया तो रोमन्स आए उनको पकड़ने के लिए, तो कैसे पहचानेंगे ना। तो एक जो हवारियून था, उसको जो है यहूदियों ने क्या कहा कि देखो, जो जो फौजी है ना वो आ रहे हैं उनको कत्ल करने के लिए, है ना। अब तुम क्या करो, कैसे पहचानेंगे ना, पूरे वो जो हवारियून भी बैठे हुए हैं साथ में, हाँ, तो कैसे पहचानेंगे। तो तुम एक काम करना, जब तुम है ना उनको बताना कि कौन उसमें से है ना ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वो लोग को नहीं पता ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। तो तुम बताना कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, तुम मदद करना, ओके। तो वो जो हवारीन था उसमें से एक, उसका नाम बहनों यहूदा करके आता है, ओके, उसका नाम यहूदा आता है। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे मैं जिस जिस इंसान को देख के मैं ये कहूंगा ओ माय लॉर्ड, ओके, तो तुम समझ जाना कि जिसको देख के मैं कह रहा हूँ ना ओ माय लॉर्ड, उनके उनकी लैंग्वेज में वो जो भी था, जब मैं बोलूंगा ना तो समझ जाना कि वही कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये उसने बता दिया, ओके। अब क्या हुआ बहनों, उस दिन ऐसा हुआ कि बाग में एक घर में ईसा अलैहिस्सलाम अपनी इबादत में लगे हुए थे, पूरे हवारीउन बाहर बैठे थे, ओके, और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो रूम में इबादत कर रहे थे। अब यहाँ पे वो फौजी आ गए हैं मारने के लिए, ओके, मगर अल्लाह तबारक ताला कौन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना, प्लानर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो हवारियून था वो अंदर घुस के गया, ओके, देखने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, ताकि वो बताए उनको कि देखो ये है वो करके। अब क्या हुआ, ये अंदर घुस के जाता है, और ये यहूदा, और जैसे ही अंदर घुस के जाता है बहनों, तो यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम जो इबादत कर रहे थे, अचानक से बहनों छत जो है वो खुलती है, जो जो वो घर का छत था वो अचानक से टूट के खुल जाती है, और 4 फरिश्ते वहां से उतरते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को लेके वहां से ऊपर चले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब किसने देखा, वो यहूदा ने देखा। तो यहूदा एकदम शॉक में हो गया, ओके। और अल्लाह ताला ने भी क्या किया, इसी हवारियून को क्या किए, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। अब इसको ये बातें कुछ नहीं मालूम है, ये एकदम शौक से बाहर आता है बोलने के लिए रोमन्स को कि भाई वो तो ऐसा हो गया, हाँ, इसको नहीं पता इसकी शक्ल चेंज हो गई है। पर जैसे ही ये बाहर आता है ना, वो जितने हवारियून बैठे होते हैं, वो सब जब देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में ये बाहर आ गया, अब उनको भी नहीं पता कि ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, ये सिर्फ यहूदा को पता था। तो जैसे यहूदा बाहर आता है, जिसकी शक्ल ईसा इस्लाम की हो चुकी है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, ओ माय लॉर्ड, मतलब उनको देख के क्या बोलते हैं, वो जो भी वर्ड था बहनों उनका, वो लोग वही लफ्ज को कहते हैं। देखो अल्लाह ताला क्या बेस्ट प्लानर है बहनों। हाँ, सब लोग बोलते हैं अरे ओ माय लॉर्ड, तो रोमन समझ जाते हैं कि अच्छा ये ईसा अलैहिस्सलाम है। तो फिर यहूदा को पकड़ के इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, और हिस्ट्री सबको पता ही है
کہ सूली पर भी चढ़ा देते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है बहनों, अल्लाह के होते तो कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, दुश्मनों का साथ देख के देखो इसका क्या हाल हुआ, कि इसी को फिर क्या किया गया, क्रूसीफाई किया गया, सूली पर चढ़ाया गया। तो ये जो अल्लाह के खुफिया प्लानिंग्स होते हैं बहनों, है ना, अल्लाह ताला हमारा भी साथ दे, है ना, अल्लाह ताला हम भी ऐसे हो जाएं। लाख लाख मुद्दे चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। तो हमारा साथ भी कौन दे, अल्लाह दे, है ना, आमीन आमीन। तो अल्लाह ताला हमारा भी क्या दे, हमारे साथ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो गए बहनों, ईसा अलैहिस्सलाम तो माशाल्लाह हिफाजत से चले गए, और कौन पकड़ा गया, जिसने धोखा दिया था। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखना बहनों, अल्लाह अपने काम करते ही रहता है, उसके काम कहीं रुकते नहीं है। हिजरत करना ही था तो हिजरत भी हो गई, किसको पकड़ना था, जिसने फ्रॉड किया था, वो पकड़ा भी गया, और वो कुछ नहीं कर सका, उसका चेहरा ही बदल गया बहनों। आज प्लास्टिक सर्जरी में चेहरा बदल नहीं पाते इतना अच्छे से, है ना। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने प्लास्टिक सर्जरी ऐसी कर दी। हाँ, आज हो रहा है ना बहनों प्लास्टिक सर्जरी, लोग पैसे दे के सर्जरीज करा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी, चेहरा बदल रहे हैं। हाँ, और फिर यहाँ देखो, यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हो गई, क्या मिरेकल हो गया कि ईसा इस्लाम का चेहरा जो है ऐसा डाल दिया कि ये जो है वो पकड़ा गया। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला फिर क्या कह रहे बहनों, जब ये सब मैं ये पूरा वाकया बता दी, मगर जब ईसा अलैहिस्सलाम थे, तब अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा, जब कहा अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से कि बेशक मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, ले जाने वाला हूँ, और मैं जो अल्लाह ताला जो है वो क्या करने वाला है, तुम्हें जो है वो उठाने वाला है अपनी तरफ। देखो, यहाँ पे साफ अल्लाह ताला ने कह दिया है। बहुत सारे लोग इसको वफात भी कहते हैं, फौत हो गए भी कहते हैं। तो याद रखना बहनों कि यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम, देखो ये जो आयत नंबर 55 है ना बहनों, ये एक ऐसी आयत है बहनों जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही ऐसी आयत है बहनों कि कितने लोग इस आयत की वजह से बहक गए, आयत की वजह से गुमराह हो गए बहनों। एक कादरानी, कादियानी करके एक मजहब है बहनों, जो पूरा की पूरा इस आयत पर ही बेस्ड है बहन। समझ में आ रहा है, वो लोग इस आयत की ही दलील देते हैं। ये लोग एक अलग ही मसलक के हैं, अलग ही जमात के हैं, और रीजन क्या है, वो लोग यही आयत बताते हैं कि देखो फौत हो गए, देखो फौत हो गए। नाउजुबिल्ला, ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए। अरबी के मीनिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं बहनों, समझ में आ रहा है। यहाँ पर बहनों अल्लाह ताला क्या किए, अल्लाह ताला ने उनको क्या करे, आई विल टेक यू, यानी अल्लाह ताला ने उनको यहाँ से क्या किया, उनको ले लिया, उनको क्या किया, अपनी तरफ उठा लिया, और क्या कर दिया, उनको पाक साफ कर दिया उन लोगों से जो क्या थे, काफिर थे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गालिब कर दूंगा उन लोगों को जो तुम्हारी पैरवी करते हैं, किसके ऊपर, उन लोगों पर, यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कोई भी तुम्हारी पैरवी करेगा ना, उसको अल्लाह ताला क्या करेगा, हमेशा सुपीरियर रखेगा, हमेशा उनको गलबा देगा। किन लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कुफ्र किया, कयामत तक, कयामत के दिन तक बहनों, अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया। अब ये आयतों का भी मैंने तफसीर देखी ना बहनों, तो अलग अलग मुफस्सरीन अलग अलग बता रहे हैं, जो बता रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कौन पैरवी कर रहा था बहनों, देखो क्रिश्चियंस जो है ना, वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, है ना, मगर उनके नक्शे कदम पे आज कोई नहीं चल रहा है बहन, है ना, उनकी पैरवी नहीं कर रहे, मानते हैं बस, पैरवी नहीं कर रहे। आज उनकी पैरवी कौन कर रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमान पैरवी कर रहा है, मुसलमान मानता भी है। और जो दीने इस्लाम उन्होंने बता के गए, मतलब मुस्लिम ही थे ना वो भी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी तो एक ही अल्लाह की बंदगी करने बोल रहे हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं ना कहीं हम ही उनकी पैरवी कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान ही है जो क्या होंगे, काफिरों पे फौकियत पाएंगे। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे क्रिश्चियंस है जो नबी, जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले, उस वक्त के जो हवारियून है, उस वक्त के जो क्रिश्चियंस है, वो जो है वो फौकियत पाएंगे किस पर, यहूदी पर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे आपको तफसीर में अलग 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 सब मिल जाएगा। खुलासा क्या है बहनों, जो भी नबियों की पैरवी करेगा
وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ غالب ہوگا. اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے پیروی، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیروی کرنے والے فالوورز جو ہے بہنوں، وہ ہمیشہ سپیریئر رہیں گے، ہمیشہ غالب رہیں گے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے. اوکے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. اور بہنوں سب جانتے ہی ہیں کہ آج کرسچنز جو ہے، اگر یہ آیت واقعی میں کرسچنز جو ہے وہ یہودیوں پہ بھاری رہے گا، تو واقعی میں یہ ہے نا بہنوں، آج نصرانی جو ہے وہ تعداد میں، حکومت میں، ریسورسز میں، ہے نا، ہر لائن سے بہنوں یہودی پر کیا ہے؟ بھاری ہے. اوکے، الحمدللہ. اور مسلمان بھی بہنوں، اگر مسلمان مین تو کیا ہے کہ وہ اطاعت کرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، واقعی میں وہ فالوور رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کریں گے؟ سپیریئر رکھیں گے. اوکے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ میں فیصلہ کروں گا. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے بہنوں. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ میں فیصلہ کروں گا، میں جج کروں گا تمہارے درمیان اس میں جو تم کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے. یعنی کہ جو تو یہودی ہے، کرسچنز ہے، یا جو بھی آج ہے، اوکے، جو بھی مذہب کو الگ الگ فالو کر رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، وہ سب کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین. اوکے، الحمدللہ. تو بہنوں یاد رکھے، میں نے آپ لوگ کو سب بتا دیا کہ ایسے بہت سارے الگ الگ آپ کو تفسیر بھی ملیں گے الحمدللہ. تو یاد رکھے بہن، اوکے، انشاءاللہ. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی حفاظت کی نا عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاگ ہی رہے تھے، حیات تھے، اور جسمانی اور روحانی ہجرت کیے بہنوں. جان اور ان کی روح، ان کا جو جسم ہے، روح ہے، اس کے ساتھ ہی ان کو لے کے چلے گئے ہیں آسمان میں. ہاں الحمدللہ. اور انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت سے پہلے، اوکے، وہ ضرور زمین پر آئیں گے. اور جب وہ آئیں گے بہنوں، تو وہ امتی کی شکل میں آئیں گے. مطلب وہ ایک نئی شریعت، نئے پیغام نہیں لائیں گے، وہ امتی بن کے رہیں گے. ان کو آلریڈی قرآن پتا رہے گا، ان کو تورات اور انجیل تو حفظ ہے بہنوں، قرآن بھی حفظ رہے گا. ان کو پورے اسلام جو یہ شریعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، وہ پورے ٹیچنگز ان کو معلوم رہیں گے الحمدللہ. اور وہ اسی چیز پر چلیں گے اور پھیلائیں گے الحمدللہ. اوکے، جس عمر میں وہ گئے تھے اسی عمر فریز ہو گیا ہے بہنوں. وہ عمر ہے نا، وہی عمر سے ماشاءاللہ وہ اتریں گے. مفسرین بتاتے ہیں 33 عمر کے ہے. اوکے، مطلب مڈل ایج، میچور عمر کے ہے الحمدللہ. اسی عمر سے وہ آئیں گے. بہت سارے حدیثیں بہنوں، 100 سے زیادہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گے جہاں پہ صاف صاف دیا ہے، صحیح حدیث بہنوں، کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، ہے نا. پھر وہ ہے نا جتنے بھی کراس ہے، جتنے بھی کراس ہوتے ہیں نا کرسچنز کے، وہ سب کو توڑ دیں گے. پگ کو قتل کر دیں گے، جتنے بھی سور ہے اس کو قتل کر دیں گے. وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ سب آتا ہے بہنوں. یہودیوں کو تو وہ جان سے ہی مار دیں گے، اور جو کرسچنز ہوں گے نا بہنوں، ان کو دعوت دیں گے کہ بھائی تم لوگ آ جاتے ہو کیا دین حق پر؟ اگر وہ آ جاتے تو الحمدللہ، نہیں تو وہ بھی گئے کام سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب مسلمان ہو جائیں گے بہنوں، سب مسلمان ہو جائیں گے، برائی ختم ہو جائے گی ماشاءاللہ، نیکی اور اچھائی پھیل جائے گی. یعنی ایک ہی ریور پہ، ایک ہی ندی پہ آ کے شیر اور بکری پانی پیئیں گے. اتنا زیادہ جو ہے نا امن پھیل جائے گا بہن، اتنا امن پھیل جائے گا، اتنی برکتیں ہو جائے گی. جب برائی چلے جائے گی نا بہنوں، تو اچھائی جب آ جاتی ہے تو برکتیں رہے گی بہنوں. اتنی برکتیں، اتنی برکتیں کہ کہتے ہیں کہ فروٹس کی برکت ہوگی، اناج کی برکت ہوگی، ہر ایک کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ جب صدقہ خیرات بھی کریں گے تو کوئی رہے گا ہی نہیں جس کو صدقہ خیرات کرے. یعنی اتنا سب کچھ رہے گا بہنوں، ویلتھ ہی ویلتھ، پراسپریٹی ہی پراسپریٹی. جب اچھائی آئے گی تو کتنا سب کچھ بولتے نا گڈنس لے کر آئے گی الحمدللہ، ہے نا. اور بہت اچھا ماحول ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، پتہ نہیں ہم رہتے کہ نہیں رہتے، پر سن کے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ اتنا امن
हाँ, इतना सुकून, कोई काफिर नहीं, कोई बुराई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो इनका अकीदा है ना बहनों, कि ये लोग जो कहते हैं कि क्रिश्चियंस लोग क्या कहते हैं कि जो गुनाह करना है करो, हाँ, नाउजुबिल्ला। ये लोग क्या, इनका यकीदा क्या है देखो बहनों, कि जो गुनाह करना है करो। क्या होगा, ईसा अलैहि सलाम जो है वो क्रूसीफाई हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो सेक्रीफाइस कर दिए। क्यों? ताकि वो सबके गुनाह को लेके उन्होंने क्या करे, अपनी अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये वो लोग बोलते हैं, जो भी क्रिश्चियन बनता है ना, उसको ये लोग यही दावत देते हैं। बहनों, जब ये लोग दावत देने पर आते हैं, हमारी दावत जो है ना वो सच पर होती है, हक पर होती है ना। हम कुरान और हदीस की दावत देते हैं और सच बताते हैं। पर ये लोग है ना बहनों, दावत देने के लाइन से कोई गलत काम नहीं छोड़ते। यानी दावत देने में झूठ पे झूठ भी बोल देते हैं, गलत गलत चीजें भी बताते हैं, लोगों को पैसे दे के खिला के इस्लाम की तरफ खींच, उनके मजहब की तरफ खींचते हैं। और बहनों, सब गलत काम ये लोग बोलते हैं। बोलते हैं कि जो गुनाह करना है करो, जो मनचाही जिंदगी जीना है जियो। सबके गुनाह क्या हुए, ईसा सलाम जो है नाउजुबिल्ला, है ना, जीसस जो है वो फगीव कर, वो क्या पता नहीं क्या क्या तो लोग बोलते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी है, ऑल आर फगीवन, है ना, ये उनका बोलना है। तो देखो ना बहनों, कितना ये लोग करते, पता है, हॉस्पिटल्स, मेन क्या थे, ये लोग साइंस के माहिर थे, है ना। तो मेन ये लोग की जो मिशनरीज है, वो हॉस्पिटल्स में बहुत खर्चा करती है। ये लोग, पता है बहनों, वहां पर भी इनके एक आध जो मुसलमान हो जाते हैं बहनों, वो लोग आके बताते हैं कि पहले जो भी हमारे पास आता है ना, हम लोग फ्री इलाज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान और गैर जात वाले भी आ जाते हैं बहनों। मुस्लिम जब आता है ना, बिकॉज फ्री इलाज होता है, तो उसको पहले है ना गलत दवाई देते हैं, शुगर कोटेड दवाई देते हैं, और बोलते हैं कि बिस्मिल्लाह बोल के दवाई खाओ, बिस्मिल्लाह बोल के दवाई खाओ, पहले तो खुद ही कहते हैं बहनों। और पता है कि वो दवाई सही नहीं है, शुगर कोटेड है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके हेल्थ में। ओके, और उसके बाद बोलते हैं कि अरे तुम इतना तुम लोग ने अल्लाह का नाम लेके खाए, नाउजुबिल्ला, फिर भी तुम लोग अच्छे नहीं हुए। चलो एक काम करो, अभी दवाई तो दवाई है ना, अब तुम क्या करो, ईसा इस्लाम का नाम लेके दवाई खाओ। और कुरान की आयतें दिखाते, देखो ईसा इस्लाम का नाम तो खुद ही कुरान में आ रहा है। ईसा इस्लाम के देखो मौजिजात देखो, वो खुद ही क्या करते हैं, हील करते हैं, हाँ, खुद ही जो है वो शिफा करते हैं। मैं, हम नहीं बोल रहे भाई, तुम्हारा कुरान बोल रहा है, देखो यहाँ पे है ना, ये आयतें देखो। चलो तुम एक काम करो, अभी ईसा इस्लाम के नाम से खा लो। और तब क्या करते हैं, सही दवाई लाके देते हैं। तो जब वो मुसलमान या जो भी गैर जात होता है, जब वो उसका नाउजबिल्ला जीजस का नाम लेके वो खाता है बहनों, तो जब वो सही दवाई देते तो बट ऑफ कोर्स वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद उसको बोलते हैं कि देख, तेरे नाउजुबिल्ला तेरे अल्लाह के नाम से नहीं हुआ, ये नाम से हुआ, समझ में आया? तो वो इंसान जो ऑलरेडी कमजोर है, वीक है, वो इनकी बातों में आके क्या कर लेता है, अपने इस मजहब को छोड़ देता है। समझ में आता है? या तो कोई गरीब होता है बहनों, उसको उसको घर देते, उसको नौकरी देते, उसके बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी सब कर देते हैं बहनों। तो वो इतना एहसानों में दब जाता है, फिर वो भी क्या होता है, क्रिश्चियन को कबूल कर लेता है। समझ में आ रहा है? ये लोग कितना अपने मजहब को फैलाने के लिए कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं छोड़ते बहनों। हर एक जो क्रिश्चियन कमाता है ना, उनका महीने का 25% सैलरी बहनों, ये लोग अपने मिशनरीज में देना इनको फर्ज है बहनों। और ये लोग देते भी है। हम लोग को साल में 2.5% है बहनों, हम लोग रो रो के देते। ये लोग महीने के कितने परसेंट देते हैं बहन, और खुशी से देते, क्योंकि इन लोग का मजहब फैल रहा है। यहूदी जो है वो अपना मजहब नहीं फैलाते बहन, जो आ गया ऑलरेडी पैदा हो रहा है बस वही, वो लोग कभी फैलाते नहीं है, इसके लिए इनकी कौम बढ़ नहीं रही है, वो वही की वही ठहर गई है। समझ में आ रहा है? बहुत कम लोग है यहूदी, बोलते ना आटे में नमक के बराबर। मगर क्रिश्चियंस क्यों फैल रहे हैं बहनों, यही वो बात है। ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते बहनों। यहाँ तक कि आता है कि इनका एक सिटी है बहनों, जैसे हमारा मक्का होता है ना बहनों, वैसे इनका एक सिटी है जिसका नाम है सॉल्ट सिटी करके। और ये लोग जब वहां पे कोई भी जब जाता है ना बहनों, जैसे मक्के में हम लोग जाते हैं ना उमरा हज करने, वैसे ही जब वो सॉल्ट सिटी में कोई भी आता है ना बहनों, तो जो वहां का एक बंदा बताता है कि ये लोग ऐसा वेलकम करते हैं, ऐसा वेलकम करते हैं बहनों, कि
यहाँ पे जो हम लोग बारातियों का वेलकम करते हैं ना, जब दूल्हे वाले आते हैं तो दुल्हन वाले कैसी वेलकम करते हैं, हाँ गिर जाते ना, कितना देखते कि भाई दूल्हे वाले आ गए, दूल्हे वाले आ गए, कितना कुछ करते, राइट। तो बोलते कि वो भी फेल इनके सामने, हाँ दुल्हन वाले जो दूल्हे वाले को देखते ना वो भी फेल, यानी कि इतना अच्छा वेलकम और इतनी खातिरदारी, इतनी खिदमत ये लोग करते हैं ना बंदे के ऊपर। जब बंदा सॉल्ट सिटी आता है, दुनिया का कोई ऐसा इंसान वेलकम कर ही नहीं सकता। ये लोग इतनी खातिरदारी और इतनी खिदमत करते, समझ में आ रहा है। ये लोग ना सिर्फ पैसे खर्च करते हैं मगर अपना माल जान सब लगा देते हैं बहनों। इनके चैनल्स देखना, इतने सारे चैनल्स, एक चैनल हमारा जल्दी मिलता नहीं है, हाँ 200-300 चैनल्स है अगर आज खोलेंगे तो केबल में। हमारा चैनल अल्लाहु आलम किधर है, इनके कितने चैनल्स, गॉड टीवी भी है इनका, और पूरा दिन चलता रहता है। वहां पे जीजस ने ये किए, जीजस के नाम से वो किए, सिर्फ देखो उन लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ सही जगह पे माल खर्च करते हैं बहन। शादियों में वल्लाहु आलम हमारे साथ सोना देना, इतने पैसे देना, इतने जोड़े देना, ये सब खर्चे नहीं है। तुम लोग देखो उन लोग वो जो व्हाइट कलर का गाउन पहनते हैं वो कौन से इतने सारे जेवरे पहनते हैं बहनों। एक हाथ होता है तो बहुत, एक अंगूठी पहना दिए तो बहुत, खत्म है ना, एक खाना खिला दिए खत्म। हमारे जैसे तो वेस्टेज कोई नहीं करता, 100 कपड़े दिए, वो ये करे, ऐसा करे, ये रस्म वो रस्म, है ना। तो बहनों ये लोग सही जगह पे, ये लोग हालांकि गलत है बहनों, पूरे गलत है ये लोग, मगर कैसी गलत चीज पे भी कितनी मेहनत है दीन की कर रहे हैं वो हम देखे। ये सब चीजों से भी हम सबक सीखे बहनों कि हम सो रहे हैं और ये लोग कितनी मेहनतें कर रहे हैं ना। और फिर क्या कहा बहनों 56 आयत में, फिर रहा वो लोग जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जरूर उनको अजाब दूंगा, शदीद अजाब, इस दुनिया में भी और आखिरत में। जो भी अल्लाह का इनकार करता है, जो भी अल्लाह को झुटलाता है, जो भी नाशुक्री करता है बहनों, याद रखना कुफर का मतलब बहुत सारे बहनों, नाशुक्री के भी है। कभी हम लोग नाशुक्री ना करें बहनों। अल्लाह को हम जुबान से, दिल से, आमाल से हमेशा शुक्र अदा करें बहनों, वरना क्या होगा, अल्लाह ताला शदीद अजाब देगा दुनिया में भी और आखिरत में, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। और रहा वो लोग जो ईमान लाए और अमल स्वाले करे, अल्लाह ताला कहता है कि उनको पूरा पूरा दिया जाएगा उसका अजर। हाँ, यहाँ पे देखो बहनों अल्लाह ताला कहते हैं कि ही विल ग्रांट देम इन फुल। अल्लाह तबार ताला पनिशमेंट देने के टाइम पे कह रहा है कि मैं पनिश करूंगा। हाँ, वहां पे देखो अल्लाह ताला कितना गुस्से में है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं अजाब दूंगा। हाँ, हालांकि बहनों फरिश्ते ही है जो देते हैं, पर कितना गुस्सा अल्लाह का कि वहां पे कहते हैं कि मैं अजाब दूंगा। और नेकी की जगह पे देखो बहनों कितनी नरमी, अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई ईमान लाए और अमल साले किया तो यहाँ पर भी तो अल्लाह ही देता है ना। हाँ, तो ही विल ग्रांट देम, यानी वो जो है वो पूरा पूरा देगा उनका अजर। और अल्लाह तबारा ताला नहीं पसंद करता जालिमों को। तो जुल्म नहीं करना है बहनों, सबसे बड़ा जुल्म है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना बहनों। कभी हम किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराए, समझ में आ रहा है, ना चीजों को और ना लोगों को। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल आ जाते हैं तो किसी को भी वो जगह वो दर्जा मत दो बहनों। हम लोग ये करते हैं, हाँ अल्लाह क्या कहता है, रसूल क्या कहते हैं हम जानते हैं, पर हम लोगों की फिक्र करते हैं। अरे लोग क्या बोलेंगे, हाँ सास चिल्लाएगी, शौहर, कितना हम लोग सोचते हैं, और अल्लाह और अल्लाह की रसूल की नाफरमानी कर बैठते हैं। हाँ, उनको वो दर्जा दे दिए जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बहन। तो ये भी तो जुल्म ही हुआ ना। पहली हमारी जिंदगी में कौन हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, ओके। और अल्लाह ताला जो है वो शिर्क करने वाले, किसी पे जुल्म करना, है ना, ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है बहनों, ओके। और ये सब क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, ये सब अल्लाह ताला जो है वो पढ़कर सुना रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं आप पर, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतों में से। और वो क्या है, जिक्र है, नसीहत है, याद दिलानी है, बहुत हिकमत वाली। यानी ये सब बातें जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे हाजिर नाजिर नहीं थे, उनको कोई गैब की बातें नहीं पता बहनों। ये बारहा बारहा बताने का मतलब यही है बहनों, क्योंकि आज ऐसे लोग हैं, ऐसी जमातें हैं
नाउज़ बिल्ला जो ऐसा बोलते हैं बहनों, बहुत गलत फिरके फैले हुए बहनों, जो ये बातें बोलते हैं कि नबी को सब गैब का इल्म है। नबी को वही इल्म है जो अल्लाह ने उनको बताया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने बहुत इल्म से नवाजा उनको। हम तो ये बात पर बिल्कुल नहीं बोलते, मगर जितना भी अल्लाह ने उनको बताया वो पूरा इल्म है। अलग से कोई गैप का इल्म उनके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और ना ही वो हाजिर नाजिर थे बहनों, ये सब जगह पे वो नहीं थे। ये सब बातें उनको कैसे पता चला? क्योंकि अल्लाह ने उनको आयतों के जरिए, तिलावत के जरिए बताई गई है। और ये सब में क्या है? नसीहतें है, जिक्र है, याद दिलानी है, बहुत ही हिकमत वाली, है ना, बहुत हिकमत छुपे हुए हैं, बहुत ही विजडम छुपा हुआ है बहनों, है ना। आज हमने जाना कि अगर मुझे और तुम्हें अल्लाह ताला सक्सेस चाहना है, तो मुझे और तुम्हें कॉन्शियस रहना है, महसूस करना है बहनों, अलर्ट रहना है ना। ऐसे पागलों जैसे लाइफ नहीं जीना है कि चलो खा लिए पी लिए सो रहे, कौन क्या कर रहा है पता नहीं, बच्चियां किसी चैटिंग कर रही है पता नहीं, शौहर क्या गलत सलत देख रहा है पता नहीं। हाँ, हमको तो लगता है कि बस हम एक अलग दुनिया में रह रहे, नहीं, अलर्ट रहना है बहनों। चील की बहुत प्यार मोहब्बत करो, सबसे अच्छे से रहो, पर चील की नजर रखो कौन क्या कर रहा है, वरना कल धोखे मिलेंगे बहनों। कितनी औरतें अपने बच्चों को बोलती है कि अरे मेरा बच्चा तो फरिश्ता है, फरिश्ता, कभी मतलब बोले ना फरिश्ता बोल देते, और एक दिन मालूम पड़ता है सुबह उठ के लेटर लिख के चले गई बच्ची कि मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। वो माँ शौक में चली जाती है जब लोग आके उसको पूछते हैं कि भाई तेरे घर में थी, तेरे नजर में थी, इतना कुछ हो गया, तेरे को कुछ नहीं मालूम? वो औरत बोलती नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम। वो घर गृहस्थी में ऐसी रहती है, बच्चों पे इतना ब्लाइंड फेथ रहती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं माँ को कुछ नहीं मालूम। फिर गैरों से मालूम होता है कि वो वहां घूम रही थी, यहाँ घूम रही थी, ये कर रही थी, वो घूम कर रही थी। हाँ, हर बात पे यकीन करते हैं, स्टडीज करने जाते हैं बोल के कहाँ घूम रहे फिर रहे, माँ को कुछ नहीं मालूम। तो बहनों बहुत अलर्ट रहना जरूरी है। समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक मिसाल किसकी, ईसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के पास। अब यहाँ पे जो लोग नाउज़बिल्ला मानते ना कि ये लोग के नाउज़बिल्ला ईसा इस्लाम गॉड है, सन ऑफ गॉड है, ट्रिनिटी है, और उनको जब पूछते कि क्यों तुमको ऐसा लगता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं बहनों? क्योंकि वो बिना वालिद के पैदा हुए, है ना। तो ये उनको लगता है कि जो बिना वालिद के पैदा हुए मतलब ही इज गॉड, नाउज़बिल्ला। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि इतनी ताजुब की बात क्यों है, इतनी हैरान की बात क्यों है ना, कि भाई यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम भी तो बिना पेरेंट्स के पैदा हुए थे, है ना। तो क्या उनको भी गॉड मान लेंगे? उनको तो तुम गॉड नहीं मानते, उनको तुम बराबर प्रॉफिट कहते हो। हाँ, एडम कहते हैं ना ये लोग, उनको तो तुम कभी गॉड नहीं बोले, हालांकि वो तो और ज्यादा ताजुब की बात है। यहाँ पे कम से कम एक माँ तो है, उसका वूम तो है। हाँ, यहाँ तो वो भी नहीं है, मिट्टी से बना के अल्लाह ने उनको फूंक मार दिया और वो रूह डाल दिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको तो तुमने कभी गलत फहमी नहीं ली, तो इनको कैसे लेते हो? समझ में आया? तो अल्लाह ताला हमको समझा रहा है। और ये हमको दावत के काम, दावत में मदद आएगी बहनों, है ना। हम क्रिश्चियंस को ये बात बोल सकते हैं। अगर वो लोग को हम पूछते कि भाई व्हाई डू यू वर्शिप हिम, तो अगर वो बोलते कि बिकॉज ही वाज born from virgin Mary, हाँ, तो हम उनको बोल सकते। देन हाउ कम आदम अलैहिस्सलाम को तुम नहीं मानते? हाँ, वो तो ना माँ थे ना बाप थे। तो हम लोग ये सब दलील उनके सामने पेश कर सकते हैं ना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है बहनों, कि उनकी मिसाल कैसी है अल्लाह के पास, जैसे कि मिसाल आदम इस्लाम की। अल्लाह ने आदम इस्लाम को पैदा किया मिट्टी से, फिर कहा उसे हो जा, फिर वो हो गया। हाँ, ये तो और हैरान की बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज हम उनको बता सकते हैं। और ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, बस तुम नहीं हो जाना किस पे, डाउट करने वालों में से, शक करने वालों में से। यानी जितनी भी आयतें हाँ बताई जा रही है बहनों, ये सब क्या है? हक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो है वो कभी भी बहनों, हम जो गलत फहमी है उसको क्लियर करें उनको। और हम जो है ना, ये जो हक बात आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम क्या कहें उनको, हम कभी भी उसमें क्या ना करें, डाउट ना करें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारा सबक यहीं तक था और पूरा के पूरा मुकम्मल हो गया। अल्लाह से दुआ करते हैं
اب बहनों याद रखना, एक पॉइंट मैं सिर्फ यहाँ पे बताते हाईलाइट करते हुए चले जाती हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ना बहनों, वो कभी भी यहूदियों के पास जाते और दावत देते, हाँ, ऑलरेडी उनको तौरात हिफ्स थी, इंजिल हिफ्स थी, और वो जब भी ये सब बातें क्लियर करते ना, तो यहूदी जो थे ना वो उनको कभी भी अपनी दावत देते। ओके, वो लोग बहस करते, झगड़े करते और बताते हैं कि देखो नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं, ये सही है, वो सही है। तो पता है बहनों, ईसा अलैहिस्सलाम, ओके, अगर वो, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, अगर वो चाहते तो वो बोलते कि चलो भाई, लोग इतना बोल रहे हैं, चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, हाँ, एक आध बात में मैं भी सुन लेता हूँ ताकि वो लोग मेरी सुन ले। जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफी लोग क्या बोलते थे कि तुम एक साल हमारे बुतों की पूजा करो, एक साल हम तुम्हारे अल्लाह की जो है वो बंदगी करेंगे, हाँ, तुम हमारा सुन लो, हम तुम्हारा सुन लेते हैं ना, तुम भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, हम भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, उन लोगों ने तो गिव अप कर दिए, बोले कि एक साल, एक महीना, एक दिन, फिर बोले कि कम से कम एक बार हमारे बुतों पे, हमारे आइडल्स पे खाली हाथ ही फेर दो बस, वो भी चलेगा, प्लीज एक बार तो तुम खाली हाँ बोल दो। मगर हमारे नबी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी जो है उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था ना, जरा सा भी मैं झुक जाता तो ये लोग तो पूरा के पूरा उम्मत का क्या होता, हाँ, उम्मत भी झुक जाती, राइट। और हमारे नबी जो थे वो साबित कदम थे, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज किए तो नहीं किए। वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदियों के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए तो नहीं किए, वो अपने हक जो हक था उसी पर कायम थे, है ना बहनों। तो ये सब बोलने का मकसद यही है बहनों, कि जब आज भी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारे सामने अपोजिशन में ऐसे लोग होते हैं जो हमको बोलते हैं कि चलो मैं कुरान क्लास आती हूँ, मैं भी तुम्हारा सुनती हूँ, तुम भी तो ये बात मान लो, तुम भी ये वजीफा पढ़ लो, तुम भी ये रोजा रख लो, तुम भी ये कर लो ना, करने में क्या जाएगा, अनाउंस कर दो, ये चीज को फैला दो, सपोर्ट कर दो, हेल्प कर दो, है ना, फॉरवर्ड कर दो। तो हम भी उनको, उनके साथ क्या ना करे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करे बहन। जो हक है, हक पर रहेंगे, भले कोई हमारे साथ हो ना हो, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। वरना ऐसा ना हो, हमको देख के जो लोग हमारे को फॉलो कर रहे, इत्तबा कर रहे, वो भी क्या होंगे, गलत ट्रैक पर चले जाएंगे, और उसका गुनाह किस पर आएगा, हम पर आएगा बहनों, समझ में आ रहा है। तो कभी भी हम हक पर रहे, हक के रास्ते पे चले, और कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई भी पैगंबर ने गलत का साथ नहीं दिया, गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सही के साथ है, सही है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि चलो तुम मेरी क्लासेस में आओ, मैं तुम्हारी क्लासेस में आऊंगी, तुम्हारी क्लासेस भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उसके बारे में शेयर करें, फॉरवर्ड करें अगर सही है तो। मगर अगर वो गलत लोग हैं, गलत ट्रैक पर है, गलत टीचिंग्स की अगर वो तालीम दे रहे, तो हम उनका साथ नहीं देंगे, जस्ट बिकॉज कि वो मेरे क्लास में आएगी तो मैं उसकी क्लास चले जाऊं, वैसा सब हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे कौन सही है, कौन हक पर है, हम उसके साथ रहेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हमारा ये पूरा मुकम्मल हो गया। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है बहनों, सही में। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, आज हमारा वेनेसडे भी है, आखिरी क्लास भी है हफ्ते का, इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी बहनों। 10-10 आयतें हम करने की कोशिश करेंगे, आज 60 तक हुआ है, तो मंडे इंशाल्लाह 61 to 70 तक करेंगे इंशाल्लाह। सब बहनें प्लीज अपना ख्याल रखे, दुआओं में खास याद रखे, एक चांस है, एक मौका है, एक जिंदगी है, इसको हम जाया नहीं करेंगे। वक्त का, वक्त मुकर्रर नहीं है बहनों, हमारी जिंदगी आइस की जैसे पिघल रही है ना, और हम इसका फायदा उठाएंगे। हम हमारे वक्तों का फायदा उठा के, कदर करके, हम ऐसे काम करके जाएंगे बहनों कि कल कयामत के दिन हम जब वो अमाल को देखे तो हमें खुशी महसूस हो रही हो कि मैंने अल्लाह के फजलो करम से कुछ कर कर आई हूँ, है ना। तो बहनों, हमारी जिंदगियों को हम वैसे कर दे, पलट दे, है ना, सुधार ले। अल्लाह ताला से दिल से दुआ
دعا ہے کہ یا اللہ یہاں پہ جتنی بھی نصیحتیں ہیں باتیں ہیں یا اللہ ان سب پر چلنے والا بنا دے, ان سب پر عمل کرنے والا بنا دے, با عمل بنا دے, قرآن کی ہر آیت میری زندگی میں آ جائے یا اللہ, متقی اور پرہیزگار بنا لے یا اللہ. 5 صفتیں ہیں جو متقی کے اندر ہونے چاہیے وہ میرے اور ہم سب کے اندر پیدا کر دے یا اللہ. پہلے تو ہم صبر کرنے والے, برداشت کرنے والے بن جائے, سچے ہو, ہم فرما بردار ہو یا اللہ. ہم جو ہے وہ خرچ کرنے والے بنے اور یا اللہ سحری کے وقت, تہجد کے وقت استغفار کرنے والے بنے یا اللہ. ہم کو تو ایسا بنا دے یا اللہ, پلیز اللہ ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے. جمعے والی موت, روزے والی موت, رمضان والی موت, کلمے والی موت, آسان والی موت, شہید والی موت اللہ ہم کو عطا کر یا اللہ. ایسی موت عطا کر کے ہمارا جو مرنا ہے اللہ وہ بھی پورے عالمین کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے یا اللہ. آسمانوں میں ہمارا ذکر ہو, تو ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا یا اللہ. تو پلیز ہمارے اندر سے اکڑ, تکبر, وہ کینہ, نفرت, غصہ سب نکال دے. ہمارے دل میں محبت ہو, نرمی ہو یا اللہ. پورے اچھے اخلاق ہماری زندگی میں ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی ہو, ان کے نقش قدم پر ہم چلے. تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا دے یا اللہ. حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا بنا دے یا اللہ. ہم سب کو, ہماری فیملی کو, ہمارے نسلوں کو یا اللہ اسی دین کی خدمت کرنے والا بنا دے, اسی قرآن پہ چلنے والا, قرآن کو پھیلانے والا بنا دے. آمین آمین آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سوری